Okay. In the previous lecture, we start new chapter, and the name of that chapter is electric current. Okay. In that lecture, we learned that what is electric current and why electric current is produced. It is clear. Let's revise a little bit, and we will then proceed further. Okay. Yes, What sir. is current? Can anyone tell me? What is current? When I said current, that means the electric current. I'm asking you about the electric current. Can anyone tell me what do you mean by electric current? Yes? Sir, can you repeat again question? Yes, I ask you that what do you mean by electric current? An electric current is a stream charged particles such as the electrons, particle. Yes. Electrons, ions, moving with an electric conductor or space. We can say that. Electric current is nothing but the rate of charge. What is electric current? It is nothing but the rate of flow of charge. It is okay? Means electric current that is represented by I and the charge is represented by Q. And electric current is equal to charge per unit time. Okay, where charge is represented by Q and time by T. So we can say that electric current I is equal to Q by T. Anyone have any doubt till now? No, sir. No. No, sir. Okay, and we all know that in the previous class we already studied that about the direction of electric current. What we study? Suppose this is a conductor. Okay, this is the conductor, and let the electron will flow. When I say the flow of electron, that means the flow of charge. It is clear? Let the electron will flow means the charge will flow from A point to B point. It is clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. It is the convention. When I said it is the convention, that means उसका मतलब convention का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है किसके? चार्ज के डायरेक्शन का. क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ electric current is opposite to the direction of flow of charge. It is clear? You must remember that the direction of electric current is opposite to the direction of flow of charge. Means if the charge is flow from point A or position A to position B, then electric current will flow from B to A. It is clear? अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो A से B हो रहा है, जो चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा? B से A होगा. किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा क्या कन्वेंशन है, और जो चीज कन्वेंशन होता है उस चीज को हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एराइजिंग द क्वेश्चन व्हाई. इट इज क्लियर? यस सर. जो चीज कन्वेंशन होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको बिना क्वेश्चन एराइज किए हुए उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं. हमें और आपको क्या एक्सेप्ट करना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है. किसके? चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन से. यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है? ए से बी जा रहा है.
सॉरी, चार्ज का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? ए से बी है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यहाँ कहाँ होगा? बी से ए होगा। किसी कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नो। नाउ एक चीज बताओगे कि जब आप लोग मोशन को पढ़ रहे थे, वहां पे आप लोग को सर ने पढ़ाया हुआ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी के बारे में। कोई बताओगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है? कैन एनीवन टेल मी? Sir, vector quantity. Why current is vector quantity? Because direction, we know direction. Yes. The teacher told you that vector quantity are those quantity which have direction plus magnitude. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है और क्या है? मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये 1 2 3 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। इट इज क्लियर? इसलिए आपने क्या बोला Yes, sir. कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या बेटा? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट इज क्लियर? अप टू Yes. योर लेवल, क्लास स्टैंडर्ड 9 के लेवल तक आप इस चीज को याद कर सकते हो कि वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज क्लियर? Yes, sir. वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद भी जो वेक्टर है वो कैसा क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज क्लियर? Yes, sir. Sir, but why? यस। अभी मैं इस चीज का आंसर दे रहा था, ठीक है? देखो, हम लोग जो वेक्टर का जो डिफिनेशन डिफाइन करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which follow vector law of addition. Means vector quantity are those quantity which follow vector law of addition. It is clear? Yes or no? Yes. अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मींस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इट इज क्लियर? या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इट इज क्लियर? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस। हमेशा याद रखना, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? यस, Vector quantity. Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। नाउ टेल मी, कोई ऑब्जेक्ट बी से ओ गया, फिर ओ से ए गया। अब ओ से ए जाने में 2 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया और ओ से ए जाने में 3 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। नाउ टेल मी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? Displacement is nothing but you have to join point A and point B with a straight line. It is clear? This is the Yes, sir. displacement.
and displacement. Now tell me, what is the magnitude of this displacement? What is the magnitude of this displacement? Yes, क्या होगा बेटा? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, AOB राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, यस और नो? Yes, sir. अब ये इसका हाइपोटेनस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और यही हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। क्या इसको हम लोग सिंपल एडिशन किए हैं? कैसा एडिशन किए? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किए। इसलिए वेक्टर क्या है? इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। अगर मैं पूछूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी इसमें डिस्टेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? if I ask you what is distance travel by a man who travel from B to O and O to A, then what is your answer? What is your answer? Tell me. सर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बेटा ये देखो, डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। तो जब हम लोग डिस्टेंस को ऐड किए, हम लोग क्या किए? सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किए। तो याद रखो, जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी पे सिंपल लॉ ऑफ एडिशन करते हैं, अंकित यू हैव एनी डाउट? अंकित? नो सर। देन व्हाई यू रेज योर हैंड? तो हमने क्या पढ़ा कि जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उस पे हम लोग क्या करते हैं? सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। जो करंट है ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। याद रखोगे ना? यस सर। लेकिन जब आप क्लास 11 में जाओगे या 12 में जाओगे, वहां पे करंट को बदला जाएगा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। अभी इस टेंसर क्वांटिटी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज क्लियर? यस सर। चलो, shall I erase the screen? यस सर, श्योर। यस सर। अब देखो यहां से करंट बराबर क्या था? चार्ज अपॉन टाइम, मींस चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है? अब ये चार्ज जो है इसका SI यूनिट क्या होता है? टेल मी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। क्या होता है बेटा? क्या होता है SI यूनिट चार्ज का? कूलम। कूलम होता है। क्या होता है? कूलम, ठीक है? और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड। तो करंट का SI यूनिट क्या होगा? कूलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, क्या होगा? कूलम अपॉन सेकेंड। यस और नो? यस सर। यस सर। और याद रखना, इसी कूलम अपॉन सेकेंड को आप लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग एम्पियर बोलते हैं। कूलम अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर, ठीक है? तो कूलम अपॉन सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, हमेशा याद रखना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। इज दिस क्लियर? सो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। नाउ if anyone asks you that what do you mean by 1 ampere,
1 एम्पियर इज द करेंट। ये 1 एम्पियर करंट कब बोलेंगे? जब किसी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम, क्या बेटा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, कितने में? 1 सेकेंड टाइम में। तो इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. 1 ampere current produced by a conductor when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. Anyone have any doubt? No, sir. You can easily define this term. Yes, sir. Yes. Always remember that 1 ampere is the current that flows through a conductor when 1 coulomb charge is flows in 1 second through that conductor. Is this clear? Yes, sir. अब देखो, हमेशा जब भी मैं करंट की बात कर रहा हूं, एक्चुअली मैं फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं। यस और नो? कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं करंट को कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्या बेटा? फ्लो ऑफ Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज Negative भी हो नेगेटिव सकता है। भी हो सकता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. हमेशा याद रखना कि अगर हम ये लिखते हैं कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, then our answer is not 100% right. Why? Because what is current here? Current is charge per unit time. Okay, and when I said charge can be positive, can be negative. Yes or no? Yes, sir. So what you can say, that current is produced because of flow of charge. This is the right answer. Is this okay? Yes, Sir, sir. can you repeat? Yes, why not? What I said, some people said that current is the flow of positive charge. Okay, this is not 100% right answer. Okay, इस चीज को और डिटेल में हम लोग कब देखेंगे? जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि यहाँ पे करंट क्या है? Q अपॉन T। Q का मतलब क्या है? चार्ज। और चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। फिर हम इस करंट के डिफिनीशन के ऊपर एक लिमिट क्यों लगाऊं? किस चीज का लिमिट? कि ये जो चार्ज है फ्लो है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का। करंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का भी फ्लो हो सकता है। फिर मैं क्यों ऐसा डेफिनेशन दूं कि करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज? इसका मतलब ये क्या 100% राइट आंसर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का भी फ्लो से करंट जनरेट होता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I erase the screen? Yes, sir. Sure. Okay, now we will do a question. Okay, if n into electrons, ठीक है, flow from A to B, okay, in t second, find electric current, okay, when charge is equal to, charge on one electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। क्या बोला है? कि कोई एक कंडक्टर है जिसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? n इंटू ई रेड पावर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का है। ये क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन को। कहां से? ए से बी फ्लो कर रहा है। कितने टाइम के लिए? टी सेकेंड के लिए। आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट हियर? सबसे पहले बताओ, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। ओके, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ पे Q क्या होगा? ये होगा या N इंटू ये होगा? क्योंकि यहाँ पे Q. कितना
यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, n चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। yes sir यस, हम लोग चार्ज की जगह पर क्या लिखेंगे, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, टाइम क्या दिया हुआ, t सेकेंड। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, यस और नो, yes sir प्रोड्यूस होगा। अब देखो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये चार्ज का डायरेक्शन कहाँ है, ए टू बी, इस करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, बताओ, इस A to करंट का B डायरेक्शन कहाँ होगा, बोलिए बेटा। देखो यहाँ पे ये क्या sir है, can you repeat ए टू बी क्या है, किसका डायरेक्शन है, ए टू बी, ए टू बी किसका डायरेक्शन है, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस करंट का फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, इस करंट का फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, बताइए। हाँ बताओ Q बेटा। upon T के साइड नहीं बेटा, मैं देखो शुरू में ही आपको बताया हूं कि जो करंट का फ्लो होता है हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, किसके, चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन का। अब बताओ अगर चार्ज का फ्लो ए टू बी हो रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, B to A करंट का फ्लो कहाँ पे होगा, करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, B to A बी टू ए। हमेशा इस चीज को याद कर लो कि जो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट के फ्लो का। इट इज क्लियर, yes sir यस। चले इरेज द स्क्रीन, ओके। अब देखो ये एक पॉइंट है, अब मानो इस डायरेक्शन से इस पॉइंट के ऊपर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से मान लो 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन से 6 एम्पियर करंट जा रहा है। अब आपको बताना है कि इस डायरेक्शन से क्या होगा करंट, ठीक है। ये क्या एक पॉइंट है, एक जंक्शन है या नहीं है, yes sir जंक्शन है। अब देखो इसमें जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, हमेशा याद रखना जंक्शन के ऊपर क्या होता है, नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। किसी किसी में कोई डाउट है, ये कब होगा बेटा, फॉर जंक्शन, ये किसके लिए होगा, जंक्शन के लिए जंक्शन के लिए। अब इसमें बताओ इनवर्ड करंट कौन कौन सा है, ये कैसा करंट है, इनवर्ड है या आउटवर्ड, what sir ये वाला करंट कौन सा करंट है, इनवर्ड करंट है या आउटवर्ड, inward इनवर्ड। तो 3 एम्पियर इनवर्ड करंट, ये कौन सा करंट है, इनवर्ड या आउटवर्ड, inward इनवर्ड प्लस 1 एम्पियर, ये कौन सा करंट है, आउटवर्ड करंट है या इनवर्ड, outward आउटवर्ड। ये किसके बराबर हो जाएंगे, इनवर्ड, नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट आउटवर्ड करंट होता है, कहाँ Net outward पे, current. एट द जंक्शन। अब एक चीज बताओ, इस करंट को मैं इनवर्ड लूं या आउटवर्ड, चलो मैं शुभम का बात मान लेता हूं, इस करंट को मैं आउटवर्ड लेता हूं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटवर्ड है मतलब इधर आएगा प्लस आई आएगा, यस और नो, yes sir चलो। अब ये कितना है, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है। क्या करता है, स्केलर क्वांटिटी विल फॉलो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए इस दोनों करंट को क्या करेंगे हम लोग, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, किसी Yes, कोई sir. डाउट, No, इस sir. क्या होगा 6 एम्पियर प्लस आई, यहाँ से आई क्या हो जाएगा
4 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर, क्या होगा यहाँ पे -2 एम्पियर होगा। यस और नो? यस सर। अब देखो करंट कभी नेगेटिव, करंट नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने डायरेक्शन यहाँ पे क्या लिया है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो मेरा आंसर क्या आया, नेगेटिव आया ना। यस सर। इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन हमने लिए है इस करंट का, आई करंट का, वो गलत लिए है। मेरा डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड इनवर्ड। होगा। क्या होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड। इट इज क्लियर। यस सर। अगर ये पॉजिटिव आता तब क्या होता, जो डायरेक्शन हम क्या लिए थे आउटवर्ड, वो सही डायरेक्शन होता। बात समझ में आया। यस सर। तो यहां से हमेशा याद रखना कि एट जंक्शन द नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। नो। चलो अब सो देखो, सर दैट मीन्स वो आंसर रॉन्ग था। आंसर रॉन्ग नहीं था, जो डायरेक्शन हमने ली वो डायरेक्शन रॉन्ग है। हम तुरंत क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ओके सर। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है। इट इज क्लियर। यस सर। ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब मानो इस कंडक्टर के थ्रू 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मानो ये ए है, या ए है और ये बी है। ए के थ्रू 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब बताओ इसके बाहर कितना और करंट बाहर जाएगा। मैं आंसर दूं, ऑप्शन दूं? यस सर। 10 एम्पियर, बी लेस देन 10 एम्पियर, सी ग्रेटर देन 10 एम्पियर, डी can't be determined. Now tell me, which option is right? फर्स्ट ऑप्शन। 10 ampere? यस सर। Tell me everyone, is Arpita answer is right? Tell me. Yes, sir. Yes sir. हमेशा याद रखना, जो करंट का फ्लो होता है ना, it will not depend on the cross sectional area. What? Current does not depend on क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो अगर सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर करंट डिपेंड करता तो क्या होता, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्या होता, जितना करंट यहां से इनलेट हुआ उतना करंट यहां से आउटलेट नहीं होता। इट इज क्लियर। यस सर, उससे ग्रेटर होता ना। या तो ग्रेटर होता या लेस देन होता, लेकिन यहाँ क्या करा, करंट क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जितना करंट इनलेट हुआ उतना ही करंट का क्या होगा, यहाँ पे आउटलेट होगा। आउटलेट इट होगा। इज क्लियर। यस सर। यस, shall I erase the screen? यस सर, सर जस्ट अ सेकंड, कैन आई टेक स्क्रीनशॉट? Yes, take it. डन सर। Okay, okay. Now हम लोग क्या देखे थे कि करंट का फ्लो हर एक, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को देखें, यहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन हर एक आइटम में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो हमने क्या देखा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं?
इंसुलेटर। insulator, अब हम लोग सब जानते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा, good conductor of electricity, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होता है, बैड bad conductor of कंडक्टर electricity, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। किसी कोई डाउट है, no sir, नो। चलो अब बीच में क्या आएगा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वैसे कंडक्टर होते हैं जो कभी कभी करंट का फ्लो करवाते हैं और कभी कभी करंट का फ्लो नहीं भी करवाते हैं। मतलब क्या है, इसमें कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है और इनसे इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होती है। इट इज क्लियर। yes sir, Yes, sir. जब दोनों की प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा, कभी करंट का फ्लो होगा और कभी करंट का फ्लो नहीं होगा। किसी कोई डाउट, No, sir. नो। ये कंडक्टर गुड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, यस सर जैसे कि ग्राफाइट में फ्री एटॉम्स माइक्रॉन्स रहते हैं, इस वजह से होता है क्या? ग्रेफाइट में क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना होता है। इसलिए ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैटरी में देखो ग्रेफाइट यूज होते हैं बीच में एनोड के रूप में। इट इज क्लियर, yes sir, यस। तो हमेशा याद रखना कि जो कंडक्टर होता है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज Charge. होते हैं, चार्ज। लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं। और मैंने क्या बोला था कि करंट का फ्लो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज। इट इज ओके। तो ऑटोमेटिक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज होगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा या वो कंडक्टर कहलाएगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। किसी कोई डाउट है इसमें, no sir, नो सर। अब ऑटोमेटिक इंसुलेटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होंगे, नो फ्री चार्ज होंगे। क्या होंगे बेटा, फ्री चार्ज नहीं होंगे। और जब किसी मटेरियल में क्या हो, फ्री चार्ज नहीं हो, क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। इट इज क्लियर। Yes, sir. yes sir, अब देखो जो सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर सेमी कंडक्टर में एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन का नाम सुने हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिलिकॉन लगा होता है। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करके, इम्प्योरिटी को डॉप करके, इसको बेटा इम्प्योरिटी को ऐड करके, क्या करके, इम्प्योरिटी को ऐड करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंडक्टर में गुड कंडक्टर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंडक्टर से गुड कंडक्टर बना सकते हैं। नहीं, हम लोग इसको इंसुलेटर से गुड कंडक्टर बना सकते हैं। हाँ ये सर, इंसुलेटर से गुड कंडक्टर बना सकते हैं। किसी कोई डाउट है, no sir, ठीक है। मतलब क्या, जब सेमी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। और लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैसे होंगे, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। क्लियर, यस और नो। yes sir, यस सर। और जब सेमी कंडक्टर में स्मॉल फ्री चार्ज प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे।
हम लोग क्या करेंगे उसमें इम्प्योरिटी को ड्रॉप करेंगे या इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे और उसको हम लोग क्या बनाएंगे, गुड कंडक्टर बनाएंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कंडक्टर का एग्जांपल क्या, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम। Gold. these are the example of good conductor, these are the example of conductor, ठीक है। अब सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या था, सिलिकॉन। और बैड इंसुलेटर का एग्जांपल क्या होगा, वुड। यस और नो? Yes, sir. सर वो तो सिलिकॉन होता है कि सिलिकॉन होता है? सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बनाओ और अपने आसपास देखो कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, और उसका एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। इज दिस क्लियर? फिर Yes, sir. सर रबर भी इंसुलेटर है ना? यस, ऑटोमेटिक। रबर इज नॉट कंडक्टिंग। जितना भी पॉलीमर होता है ना, जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, वो आपको इंसुलेटर ही होता है। पीवीसी जिसको हम लोग यूज करते हैं, वहाँ जो वायर के ऊपर कोटिंग देखे हो, वो किसका होता है, पीवीसी Yes. होता है। वो सब क्या है, इंसुलेटर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो अभी तक। No, sir. Shall I erase No, the sir. screen? Yes, sir. यस सर। Okay. अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट को इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आएगा। जैसे हम लोग जब वाटर को पढ़ते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर का फ्लो होता है। क्या होता है बेटा? Flow. वाटर का फ्लो होता है। वाटर का Flow. फ्लो होता है। कहां से कहां होता है? हाई टू लो। High to Low. low. हम लोग देते हैं टेम्परेचर, हीट। हीट का फ्लो होता है कहां से कहां होता है? हाई टेम्परेचर टू Low temperature. लो Low टेम्परेचर। temperature. लो टेम्परेचर। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। क्या होता है बेटा? हाई High पोटेंशियल से लो potential से low पोटेंशियल। ठीक है, potential. ये चार्ज का फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? यस सर। और करंट Yes, का sir. फ्लो कहां होता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। एक चीज Yes, बताओ, sir. मानो ये एक स्लोप है। अगर आपको ऊपर से इस बॉल को नीचे गिराना है, अगर आप यहाँ छोड़ दो, बॉल ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। यस सर। Yes, लेकिन sir. ये बताओ, अगर आपको नीचे से ऊपर बॉल को ले जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा फोर्स। पुश करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस बॉल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और जब हम इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक्चुअली हम इस पे क्या करेंगे, वर्क डन कर रहे हैं। यस और नो? हाँ, नहीं समझ में आया? यस सर। वर्क। मैंने क्या बोला, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा और इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से। और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज क्लियर? Yes. यस सर। ओके। अब एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहां से कहां होता है। हमने देखा था चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है, हाई ठीक है, पोटेंशियल टू लो हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो हो रहा है। और चार्ज के फ्लो का जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई वर्क। यस और नो? Yes, sir. Yes. बिना वर्क किए, यस। बिना वर्क किए क्या मैं करंट का फ्लो करवा सकता हूँ? No, sir. No, sir. नहीं। तो अब इसी के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है बेटा? Potential पोटेंशियल difference. डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है बेटा, वर्क डन ऑन मूविंग
unit positive charge from one point to another point. Is this clear? Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? सिंपली वर्क डन ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. किसको किसको समझ में आया? देखो, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है. इट इज क्लियर? अब हमें क्या करना है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कितने यूनिट को? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाना है. इट इज ओके? वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? ए से बी ले जाना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? वी हैव टू डू सम वर्क. यस और नो? यस सर. और इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. इट इज क्लियर? यस सर. तो पोटेंशियल डिफरेंस में अब किसी कोई डाउट है? नो सर. हमेशा याद रखना, सपोज करो कि ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है. आपको अगर बोला जाए कि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करें? अपने घर से स्कूल लेके आए. ठीक है, इस प्रोसेस में आपको कुछ न कुछ वर्क डन करना होगा और उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. इट इज क्लियर? क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी से. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी. अब ये डेल्टा वी बराबर क्या होता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा के लिए हमको क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना पड़ रहा है. कहां से? ए पॉइंट से बी पॉइंट. इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या है बेटा? वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट किसी चार्ज को मूव करना चाहते हो तो उसमें जो आपको वर्क डन करना हो रहा है, अगर हम उस वर्क डन को क्या करें? चार्ज से डिवाइड कर दें, वो हमको क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस देगा. इट इज क्लियर? यस सर. इसलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को? वर्क डन पर यूनिट वर्क चार्ज. डन पर यूनिट चार्ज. कोई डाउट है इसमें? नो सर. अब देखो, हमने यहाँ क्या बोला? ये आपका घर है, ये आपका हाउस है, ये आपका स्कूल है. आपको क्या करना है? अपने घर से स्कूल वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है? 1 यूनिट ओनली. हमेशा याद रखना 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. तो इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में आपको कुछ न कुछ वर्क डन सप्लाई करना होगा, वर्क डन करना होगा. अब इसी वर्क डन को अगर हम क्या करें? चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी कोई डाउट है इसमें? टेल मी. नो No? सर. Shall I erase this? Shall I erase this? यस सर. Yes. Sir. यस. चलो, अब देखो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, चलो मानो ये कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है. कहां से? ए से बी. ठीक है, और इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी बराबर क्या है? मान लेते हैं कि 30 वोल्ट है. इट इज क्लियर? वोल्ट क्या होता है? इधर एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये भी देख लो,
पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या मैंने लिखा था? डेल्टा वी बराबर क्या लिखा था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। बताओ, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? हाँ बताओ, हाँ बेटा जल्दी बताओ, आप लोग सब पढ़ चुके हो ना, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? कोई नहीं बोल रहे हो, इट्स नॉट गुड, एटलीस्ट आंसर। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेल मी। कूलम। तो इस वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम होगा ना? इस पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जूल Volt. पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। किसी कोई डाउट है? No, sir. No. तो यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है डेल्टा वी, कितना गिवन है? 30 वोल्ट। इट इज ओके? Yes, sir. यस सर। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यस Yes, यस सर। sir. तो यहाँ से डेल्टा वी बराबर क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या है? हमें फाइंड करना है। चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज कितना गिवन है 30 volt. बेटा? चार्ज गिवन है 2 कूलम। 30 volts. 2 कूलम दिया हुआ है। चार्ज गिवन है 2 कूलम। वर्क डन हमें फाइंड करना है। चार्ज कितना है? 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 30 volt. 30 वोल्ट। यहां से वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 2 जूल कूलम। ये क्या हो जाएगा? 60। यस और नो? क्या होगा ये? 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। वोल्ट कूलम बताओ। बताओगे? कैन यू हियर मी? यार यस और नो तो बोलो। आर यू देयर? शुभम, शुभम, पूर्वा। Yes, sir. यस सर। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस +2 कूलम चार्ज को अगर हम ए से बी मूव करना चाहें और 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें 60 जूल वर्क सप्लाई करना होगा। कितना जूल वर्क सप्लाई करना होगा? टेल मी। 60 joule. कितना जूल? 60 60 जूल वर्क सप्लाई करना होगा, ठीक है। Shall I erase the screen? Yes or no? अब बताओ, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। हमें ए Yes, पॉइंट से sir. बी पॉइंट -2 कूलम चार्ज को मूव करना है। कितना कूलम चार्ज को? -2 कूलम चार्ज को मूव करना है। इट इज क्लियर? अब आपको इस प्रोसेस में सपोज कर लो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी बराबर यहाँ पे मान लेते हैं कि 70 वोल्ट है। इट इज क्लियर? अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डेल्टा वी का एक्चुअल मीनिंग क्या है?
फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज क्लियर और नॉट? डेल्टा वी का यही मतलब होता है ना, Yes, फाइनल माइनस sir, इनिशियल. clear. मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर होगा, जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट के दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर. Yes, अब यहाँ sir. पे क्या बोल रहा है आपको? कितने कूलम यूनिट चार्ज को मूव करना है ए से बी? बताओ. -2. Negative -2 2. कूलम चार्ज को. और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में? 70 volt. 70 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन Q. क्यू, मतलब चार्ज. डेल्टा वी का वैल्यू कितना गिवन है? 70 70 volt. वोल्ट. वर्क डन जो हमको कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना है? -2 कूलम. -2 कूलम. यहाँ से वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? 40 इंटू -2 कूलम. 2 जार, हाँ 2 जूल. कितना होगा? 140 जूल होगा वर्क डन. Yes, sir. यस सर. अब एक चीज बताओ, ये माइनस यहाँ पे क्यों आया? इसके माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस? माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ बोलो. Negative. अब वो तो मैं भी समझता हूँ कि माइनस मीन्स नेगेटिव होता है. अर्पिता बेटा, माइनस मीन्स नेगेटिव होता है, लेकिन वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? कोई बताओगे? हाँ जी. देखो, वर्क नेगेटिव करने का मतलब क्या है? हमने क्या बोला था कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि 1 यूनिट चार्ज को अगर हम ए से बी पॉइंट मूव करना चाहें, उस प्रोसेस में जो वर्क डन सिस्टम के ऊपर करना होगा, अगर हम उस वर्क डन को डिवाइड कर दें चार्ज से, हमें क्या आता था? पोटेंशियल डिफरेंस. यस और नो? Yes, sir. यस सर. अब यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे थे? वर्क सप्लाई कर रहे थे. कब? जब मेरा चार्ज क्या था? पॉजिटिव आ रहा था. इट इज ओके. लेकिन इस केस में मेरा वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? वी आर गेनिंग द वर्क. ये काम कैसे हो रहा? विदाउट द सप्लाई ऑफ वर्क. इट इज क्लियर? बिना वर्क के सप्लाई किए हुए जो ये -2 कूलम चार्ज है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है. इट इज क्लियर? Yes, sir. नो ऐसा सर. क्यों हो? नहीं क्लियर है? देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं. मैं देखो, जब हम इस चार्ज को पॉजिटिव लिए थे, तब हमारा वर्क डन क्या आया था? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे मेरा चार्ज क्या है? नेगेटिव है. नेगेटिव है तो मेरा वर्क डन क्या आया? नेगेटिव आया. Negative आया. तो जब मेरा वर्क डन पॉजिटिव आता, इसका मतलब क्या था? हमें पॉजिटिव आता. इसका मतलब अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट मानो +1 कूलम चार्ज को मूव कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रोसेस में वर्क सप्लाई करना होगा. इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे मेरा वर्क डन नेगेटिव आ रहा, मतलब इस -2 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए हमें चार्ज को सप्लाई ना करके क्या करना होगा? सप्लाई हम गेन करेंगे, वर्क गेन करेंगे. इट इज क्लियर? Yes, sir. अब Yes, फिर sir. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता होगा कि सर, अगर हमें इस प्रोसेस में गेन हो रहा है वर्क का, फिर ये -2 कूलम चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे जा रहा है? हाँ सर. है ना? अब इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं
कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? रिपल्शन। रिपल्सन होता है। मतलब मानो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये भी है पॉजिटिव चार्ज, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी है पॉजिटिव चार्ज। दोनों में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। रिपेल करेंगे यार। दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट इज क्लियर? यस सर। अट्रैक्शन कब होगा, जब एक के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरे के ऊपर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। इस दोनों में क्या नेगेटिव। होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, ये जो माइनस चार्ज है इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। इट इज क्लियर? यस सर। समझ में आया या नहीं? शुभम, पूर्वा, किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है? नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये स्लोप है, अगर हम इस बॉल को नीचे से ऊपर ले जाए हमें क्या होगा, वर्क डन करना होगा, करना होगा ना। अगर हम इसी बॉल Yes, को sir. ऊपर से नीचे लाएं, क्या हमें वर्क डन करना होगा, नहीं करना होगा, क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्लोप। अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ जो ग्रेविटी है तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इट इज क्लियर? नो सर। अरे बेटा कोई भी चीज नीचे क्यों आता, तुम ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाता है, ऑटोमेटिक क्यों आ जाता है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर के अबाउट, बिकॉज ऑफ वेट। यस सर, गेटिंग। गेट इट? तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। किसी कोई डाउट है? नो? नो सर। चलो एरेज द स्क्रीन। यस सर। यस। अब देखो एक चीज, वो एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ रहे थे, जहां पे ये मानो ए पॉइंट है, ये मानो बी पॉइंट है, और यहां से यहां चार्ज का मूव हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे लिखते थे, डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या होता था, पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और इसी को हम लोग डेल्टा वी लिखते थे। यस और नो? यस सर। क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज, और कहां से कहां, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या है, मानो कोई चार्ज है, मानो कोई 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कितना बेटा, 1 यूनिट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। कहां पे बेटा, कहां पे है, इन्फिनिटी पे। एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कोई एक पॉइंट है ए, हम क्या कर रहे हैं, इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट पे ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे ला रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा, यस और नो? यस सर। तो जब कुछ ना कुछ वर्क डन करना होता तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या होगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, होगा या नहीं होगा? क्योंकि Yes, डेल्टा sir. वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये किसके बराबर होगा, जो ये वर्क डन हुआ अपॉन चार्ज। यस और नो? यस सर। और ये वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हैं, A to infinite.
मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये पे ऐसा फिजिक्स में माना जाता है कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो होगा। यस और नो? ऐसा फिजिक्स में एजम्पशन है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जीरो होता है। ठीक है, इज दिस ओके? यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट वी ए इज इक्वल क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन चार्ज क्यूब। इज दिस क्लियर? और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, गेटिंग। रेहान, पूर्वा, सबको समझ में आया बेटा? यस सर, गेटिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट पे लाना होगा। और उस प्रोसेस में जो वर्क डन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए। और उसको हम लोग जब चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट ए। और पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट ए को हम लोग लिखते हैं वी ए से। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो इस VB और VA का मतलब क्या है, मानो ये A है, ये A है और ये B है। और यहां से हम लोग क्या किए, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव किए कहां से, A से B। अब ये B का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हम वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट B पे लाए हैं। और BA का मतलब क्या है, हम लोग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट A लाए हैं। इज दिस क्लियर? और फिजिक्स में ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि पोटेंशियल जो होता है कहां पे, इनफाइनाइट पे, वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। किसी कोई डाउट है इसमें? यस और नो? नो सर। तो हम क्या करते हैं, अभी क्लास को ब्रेक देते हैं, ठीक है? और हम लोग कितने बजे मिलेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मैं थक गया हूं, ठीक है? हाफ एन आवर बाद मिले हम लोग। इसके बाद आपका क्लास सर शेड्यूल दिया है सर ने। शेड्यूल में कितना टाइम है इसके बाद? सर क्लास ना 5:45 को खत्म होगा, उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट होएगा। एक सेकेंड। 5:50 को। फिर अपना क्लास 5:50 से स्टार्ट होगा। 5:50, ठीक है। हम लोग 5:50 में ना मिलके 6 बजे मिले। यस? यस सर। क्योंकि मैं कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, 6 बजे मिलते हैं और इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, 6 बजे आप सब Okay, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. ओके Yes, sir. ओके, बाय एवरीवन। फिर मिलते हैं 6 बजे, ठीक है? हाँ, यस